Hello students, I am Ruchika from English Academy and today we will discuss class 12th English MCQs from the Vistas book chapter 5, Should Wizard Hit Mommy? This is a very interesting story of a small child and how her father tells her a story and how influenced she is by that story, and she wants her father to narrate the story in a particular way. उसे एक particular type की ending चाहिए होती है जिसमें वो कहती है कि wizard को मॉमी को hit करना चाहिए, and that is the title of her chapter. So I have compiled 25 important multiple choice questions from this chapter, and as you all know the format, I'll give you a question with 4 options. I'll give you 10 seconds to decide on the answer. You all can write your guesses in the live chat. Once the time is over, I'll discuss the answer with all of you. So let us begin with this MCQs quiz, and please hit on the bell icon below this video so that you get notifications of the next upload on English Academy, and also follow English Academy on social media platforms for interesting stuff and quizzes related to English. Now let us begin with this quiz, and question number 1 is, how old is Jo? Jo is the small child, the small girl in the story, and how old is she? Your options are option A 4 years, option B 2 years, option C 5 years, option D 3 years. Your 10 seconds have begun. So hurry up, write your guesses in the live chat and see how well prepared you are in this chapter. So the time is up and the answer to this is option A. Jo is 4 years old. The narrator tells us that this custom began when she was 2 and was itself nearly 2 years old. So the custom was also 2 years old and it had begun when Jo was 2 years. So now Jo is 4 years old. We move ahead to question number 2. What is this story about? Option A little girl and her curious questions to her father. Option B, skunks. Option C, world of wizards. Option D, all of these, and your time has begun. तो ये जो कहानी है शुड विज़र्ड हिट मॉमी, ये किसकी कहानी है, किसके बारे में है? स्टूडेंट्स द टाइम इज़ अप और इसका आंसर है ऑप्शन ए. ये कहानी है एक छोटी सी लड़की की और वो कैसे अपने फादर से क्वेश्चंस पूछती है अबाउट द स्टोरी दैट ही टेल्स हर. ये कहानी स्कंक्स की नहीं है. रॉजर स्कंक सिर्फ एक कैरेक्टर होता है और कैरेक्टर हर रात स्टोरी में चेंज होता रहता है. कभी वो स्कंक है, कभी वो स्क्विरल है, कभी वो फिश है, कभी वो चिपमंक है. तो ये कहानी स्कंक्स की नहीं है. ये कहानी विज़र्ड्स की भी नहीं है. विज़र्ड भी उसके फादर जो कहानी सुनाते हैं उसमें एक कैरेक्टर होता है. सो आवर आंसर इज दैट द स्टोरी इज ऑफ अ लिटिल गर्ल जिसका नाम है जो, और उसके डैड जैक जो उसको हर रात एक कहानी सुनाते हैं उसको सुलाने के लिए. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड द विज़र्ड हेल्प रॉजर स्कंक? सो इन द स्टोरी दैट जैक नरेट्स टू जो, हाउ डज द विज़र्ड हेल्प रॉजर स्कंक? ऑप्शन ए बाय यूजिंग मैजिक वॉन्ड, ऑप्शन बी बाय चैंटिंग, ऑप्शन सी बाय हेल्पिंग हिम गेट रिड ऑफ फाउल स्मेल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, एंड योर टाइम हैज़ बिगन. तो ये जो विज़र्ड है ये कहानी में रॉजर स्कंक की मदद कैसे करता है? The answer is option D, all of these. वो मैजिक वॉन्ड भी यूज़ करता है, वो एक स्पेल भी चैंट करता है और वो रॉजर स्कंक की हेल्प करता है फाउल स्मेल से गेट रिड होने में, और वो उसे रोजेस की खुशबू भी देता है. सो आवर आंसर इज ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिड द विज़र्ड आस्क रॉजर? ऑप्शन ए व्हाट डिड ही वांट टू स्टडी, ऑप्शन बी व्हाट डिड ही वांट टू ईट, ऑप्शन सी व्हाट डिड ही वांट टू स्मेल लाइक, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. योर टाइम हैज स्टार्टेड. तो विज़र्ड ने रॉजर से क्या पूछा? इफ यू हैव रेड द चैप्टर केयरफुली यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन. टाइम इज अप और इसका आंसर है ऑप्शन सी. उसने रॉजर से पूछा कि तुम किस चीज़ की तरह स्मेल करना चाहते हो. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड जो वांट द स्टोरी ऑफ रॉजर स्कंक टू एंड? ऑप्शन ए wanted to punish Roger's mother, option B wanted Roger to smell bad, option C wanted to hit Roger, option D all of these. Your time starts now. जो छोटी सी लड़की है जो कहानी सुनती है वो किस तरह की एंडिंग चाहती है अपनी कहानी की? आंसर इज ऑप्शन ए. शी वॉन्ट्स टू पनिश रॉजर्स मदर.
वाई डज शी वॉन्ट टू पनिश हिज मदर? बिकॉज उसकी मदर रॉजर को वापस विजर्ड के पास ले गई और उसने उसकी वापस जो बैड स्मेल थी वो वापस रॉजर स्कंक में डलवा दी, क्योंकि वो कहती है कि तुम इस खुशबू से ही पहचाने जाते हो, ये तुम्हारी ओरिजिनल खुशबू है और मैं नहीं चाहती कि तुम इसे छोड़ दो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें इसी फ्रेग्रेंस की वजह से पहचानती हूँ। इसी वजह से जो को अच्छा नहीं लगा कि रॉजर स्कंक की मदर ने उसको फिर से बैड स्मेल दिलवा दी और इसीलिए वो उसे पनिश करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हु हिट whom इन द ओरिजिनल स्टोरी? ऑप्शन ए, Roger hit his mom. Option B, Roger hit the wizard. Option C, wizard hit Roger's mom. Option D, Roger's mom hit the wizard. The time has started. तो जो कहानी जैक जो को सुनाता है उस कहानी में कौन किसको हिट करता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रॉजर की मॉम ने विजर्ड को हिट किया बिकॉज विजर्ड ने रॉजर की बैड स्मेल खत्म कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 7, why does Joe call Roger's mom stupid? Option A, because she doesn't listen. Option B, because she is not loving. Option C, she makes Roger smell bad once again. Option D, none of these. The time has started and I guess this is a very easy question for all of you. You all can guess the answer correctly. Time is up and the answer to this is option C. Roger की mom stupid क्यों है? जो को रॉजर स्कंक की मॉम स्टूपिड इसलिए लगती है क्योंकि वो रॉजर को विजर्ड के पास वापस से ले गई और उसकी बैड स्मेल उसे वापस से दिलवा दी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाई डिड जो थिंक दैट रॉजर स्कंक वाज बेटर ऑफ विद अ न्यू स्मेल? ऑप्शन ए, बिकॉज शी वाज एबल टू बेयर हिम नाउ. ऑप्शन बी, शी लाइक्ड रॉजर. ऑप्शन सी, बिकॉज नाउ पीपल वर फ्रेंड्स विद हिम. ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. योर टाइम हैज स्टार्टेड. अब जो वो ऐसा क्यों लगता था कि रॉजर स्कंक को जब एक अच्छी और नई खुशबू मिल गई तो उससे रॉजर स्कंक अच्छा है, बेटर ऑफ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी। अब रॉजर स्कंक के नए नए दोस्त बन सकते थे। पहले कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता था क्योंकि उसमें से बहुत बुरी स्मेल आती थी। तो जो को लगा कि अब उसमें से अच्छी खुशबू आ रही है तो अब वो अच्छे अच्छे नए फ्रेंड्स बना पाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड रॉजर वांट टू स्मेल लाइक? ऑप्शन ए, मैरीगोल्ड. ऑप्शन बी, सनफ्लावर. ऑप्शन सी, जैस्मिन. ऑप्शन डी, रोज. योर टाइम हैज स्टार्टेड. तो जब रॉजर स्कंक विजर्ड के पास जाता है, विजर्ड उससे पूछता है कि तुम कैसा स्मेल करना चाहते हो, तो रॉजर क्या जवाब देता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी एंड दिस वाज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। रॉजर कहता है कि मैं रोज की तरह स्मेल करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट काइंड ऑफ एंड जो वांटेड फॉर रॉजर स्टोरी? ऑप्शन ए, pathetic. Option B, sad. Option C, happy note. Option D, all of these. Your time has started. अब जो क्या चाहती थी कि रॉजर स्कंक की कहानी किस तरह से एंड होनी चाहिए? दुखी वे में एंड होनी चाहिए या खुशी से एंड होनी चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन सी। वो चाहती है कि उसकी कहानी एक हैप्पी नोट पर एंड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ कुड रॉजर फाइंड सो मेनी न्यू फ्रेंड्स टू प्ले हैप्पीली? Option A, because of new dishes. Option B, because of new clothes. Option C, they got used to his smell. Option D, because of new rosy smell. Your time has started. अब जो को उसके डैड क्या कहते हैं कि रॉजर को बैड स्मेल के बावजूद भी अच्छे फ्रेंड्स मिल गए, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? पहले तो वो उससे दोस्ती नहीं करते थे। इसका आंसर है ऑप्शन सी। उसके फ्रेंड्स उसकी बैड स्मेल के यूज्ड टू हो गए, उन्हें उसकी आदत पड़ गई और इसीलिए बैड स्मेल होते हुए भी उन्होंने रॉजर से दोस्ती कर ली। ऐसा जैक ने जो को तब कहा जब जो को बहुत गुस्सा आ गया था और वो रॉजर की मॉम को हिट करना चाहती थी। तब जैक ने जो को ये समझाया कि रॉजर के लिए उसकी मदर का प्यार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था फ्रेंड्स से, और इसी वजह से वो बैड स्मेल के साथ भी खुश था और जो उसके फ्रेंड्स थे वो थोड़ी देर के बाद उसके क्लोज आ गए क्योंकि अब उन्हें उसकी बैड स्मेल की आदत पड़ गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वाई वॉज रॉजर्स मॉम एंग्री विद हिम? ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ न्यू रोजी स्मेल. ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ न्यू ड्रेस. ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ न्यू अपीयरेंस. ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. द टाइम इज स्टार्टेड। तो रॉजर की मॉम रॉजर के साथ नाराज क्यों हो जाती है? इसका आंसर भी काफ़ी इजी है। आंसर है ऑप्शन ए,
जब रॉजर में से एक नई रोजेस की खुशबू आती है, उस खुशबू से रॉजर की मॉम उसके साथ नाराज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डज रॉजर्स मदर नॉट वांट हिम टू स्मेल लाइक अ रोज? ऑप्शन ए, because she dislikes roses. Option B, because she is allergic to it. Option C, because he is a skunk and he should smell bad. Option D, none of these. Your time has started. अब रॉजर की मदर ऐसा क्यों चाहती है कि रॉजर में से रोज की खुशबू नहीं आनी चाहिए? The answer to this is option C. वो कहती है कि रॉजर एक स्कंक है, उसमें से रोजेस की खुशबू नहीं आनी चाहिए, बल्कि स्कंक्स की जो बैड स्मेल है वो आनी चाहिए, और इसी वजह से वो रॉजर स्कंक के साथ नाराज हो जाती है। लेट अस मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट डिड रॉजर्स मदर डिसाइड फाइनली? ऑप्शन ए, टू टेक हिम बैक टू द ऑफुल विजर्ड एंड गेट हिज बैड स्मेल बैक. ऑप्शन बी, टू बेथ हिम. ऑप्शन सी, टू गेट हिम अ न्यू स्मेल. ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. द टाइम हैज स्टार्टेड. अब रॉजर की मदर ने क्या डिसाइड किया जब वो चाहती थी कि रॉजर की स्मेल वापस लानी है, तो कैसे आ सकती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए. वो डिसाइड करती है कि वो रॉजर को उस विज़र्ड के पास वापस लेके जाएगी और उसे कहेगी कि रॉजर की बैड स्मेल वापस डाल दे. क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज जो वांट द विज़र्ड टू बिहेव विद रॉजर्स मदर? ऑप्शन ए, nicely. Option B, politely. Option C, rudely. Option D, hit her. The time has started. अब जो क्या चाहती है, विज़र्ड को रॉजर की मदर के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए? This is very easy question. You can guess the answer from the title of the story itself. The answer is option D. She wants that the wizard should hit Roger's mother. Question number 16. Why does Joe want the wizard to hit Roger's mother? Option A, because she speaks rudely. Option B, because she behaves rudely. Option C, because she doesn't let her son have a new smell. Option D, none of these. And the time has started. जो क्यों चाहती है कि विज़र्ड रॉजर की मदर को हिट करे? The answer is very easy, students. The answer is option C. She doesn't let her son have a new smell. जो को लगता है कि रॉजर की मदर बहुत बुरी है क्योंकि वो रॉजर को एक न्यू रोज़ी स्मेल नहीं लेने दे रही, एक ऐसी स्मेल जिससे उसे बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, और इसी वजह से जो को रॉजर की मदर पसंद नहीं है. क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट आइडिया डज जो नॉट अप्रूव ऑफ? ऑप्शन ए, रॉजर्स मदर हैव रोजी स्मेल. ऑप्शन बी, विजर्ड्स हिट रॉजर्स मदर. ऑप्शन सी, रॉजर्स मदर हिट द विजर्ड. ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ. अब स्टोरी में ऐसा क्या होता है जो को पसंद नहीं आता? टाइम इज अप और इसका आंसर है ऑप्शन सी. जब रॉजर की मदर विज़र्ड को हिट करती है, ये चीज़ जो को पसंद नहीं आती क्योंकि विज़र्ड तो इतना अच्छा है, उसने रॉजर को एक अच्छी रोज़ी स्मेल दी है, फिर भी रॉजर की मदर उसे हिट कर रही है, ये चीज़ जो को पसंद नहीं. क्वेश्चन नंबर 18. Why did Roger Skunk visit the wise owl? Option A, to be his friend. Option B, to talk to him. Option C, to learn the art of flying. Option D, to seek advice. And your time starts now. Roger Skunk wise owl के पास क्यों गया था? तो जो स्टोरी जैक जो को सुना रहा था उसमें ये चीज़ क्यों होती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी. वो वाइज आउल के पास जाता है एडवाइस लेने के लिए. Question number 19. What advice did the wise owl give to Roger Skunk? Option A, to visit his friends. Option B, to meditate. Option C, to consult his mother. Option D, to consult the wizard. And your time starts now. अब ये जो wise owl है, ये Roger Skunk को क्या एडवाइस देता है? टाइम इज अप. इसका आंसर है ऑप्शन डी. वो रॉजर स्कंक को कहता है कि तुम विज़र्ड के पास जाओ और उसकी मदद से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट डिड द विज़र्ड डिमांड टू मेक रॉजर स्मेल लाइक अ रोज? ऑप्शन ए 10 pennies. ऑप्शन बी 4 pennies. ऑप्शन सी 5 pennies. ऑप्शन डी 7 pennies. एंड द टाइम हैज स्टार्टेड. अब रॉजर को अच्छी स्मेल देने के लिए विज़र्ड ने कितनी पेनीज चार्ज की? इसका आंसर है ऑप्शन डी 7 pennies. Question number 21. How many pennies did Roger have to pay?
Option A 7 pennies, option B 6 pennies, option C 8 pennies, option D 4 pennies. The time has started. रॉजर के पास कितनी पेनीज थी विज़र्ड को पे करने के लिए? इसका आंसर भी है ऑप्शन डी, उसके पास 4 पेनीज थी, सो ही वाज शॉर्ट बाय 3 पेनीज. क्वेश्चन नंबर 22, वेयर डिड द विज़र्ड सजेस्ट रॉजर टू गेट द रेस्ट 3 पेनीज फ्रॉम? अब जो 3 पेनीज कम थी वो लेने के लिए विज़र्ड ने रॉजर को क्या सजेशन दिया? ऑप्शन ए फ्रॉम अ ट्री, ऑप्शन बी फ्रॉम अ रिवर, ऑप्शन सी फ्रॉम द ओशन, ऑप्शन डी फ्रॉम द मैजिक वेल. द टाइम हैज स्टार्टेड. तो इस विज़र्ड ने रॉजर को क्या कहा कि जो 3 पेनीज कम हैं वो कहाँ से मिल सकती हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी फ्रॉम द मैजिक वेल. क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड जैक हिमसेल्फ एंजॉय द मोस्ट? ऑप्शन ए when mother hits the wizard, option B when Roger finds pennies from the magic well, option C when at the wizard's house Roger imitates wizard's voice, option D none of these. The time has started. तो कहानी का कौन सा हिस्सा, स्टोरी टेलिंग का कौन सा पार्ट जैक को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था, वो किस चीज़ को एंजॉय करता था? आंसर है ऑप्शन सी. जब उसे विज़र्ड की आवाज़ इमिटेट करनी होती थी वो काम उसे बहुत पसंद था स्टोरी सुनाते वक्त. क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई डिड जैक एंजॉय रॉजर्स इमिटेशन ऑफ विज़र्ड्स वॉइस? ऑप्शन ए कांट से, ऑप्शन बी ही लाइक्स मिमिकिंग, ऑप्शन सी ही रिलेट्स हिज ओन चाइल्डहुड एक्सपीरियंस विद इट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. द टाइम हैज स्टार्टेड. तो जैक को रॉजर की जो इमिटेशन थी विज़र्ड की आवाज़ की वो करना पसंद क्यों था? इसका आंसर है ऑप्शन सी. उसे ये इसलिए पसंद था क्योंकि वो अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस को उसके साथ रिलेट कर सकता था. क्वेश्चन नंबर 25, व्हाई डिड रॉजर विजिट द विज़र्ड? ऑप्शन ए टू लर्न मैजिक, ऑप्शन बी टू गॉसिप, ऑप्शन सी टू गेट रिड ऑफ हिज मदर, ऑप्शन डी टू गेट रिड ऑफ फाउल स्मेल. द टाइम हैज स्टार्टेड एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. सेम क्वेश्चन हम पहले भी सिमिलर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं. टाइम इज अप और इसका आंसर है ऑप्शन डी. वो विज़र्ड के पास जाता है फाउल स्मेल से गेट रिड होने के लिए. ही हैज़ अ वेरी बैड स्मेल और उसकी वजह से उसके कोई फ्रेंड्स नहीं बनते थे और वो उस स्मेल से गेट रिड होना चाहता था, इसीलिए वो विज़र्ड के पास गया था. So students, with this we come to an end of this session. Thank you for watching this video. If you liked it, please hit the like button and share it with your friends, and also follow English Academy on social media platforms for interesting stuff related to English. With this is Ruchika signing off. Until we meet next, take care and goodbye.